Emotional well-being and stress management. As we all know that this is a testing time for people all over the world as we are struggling to live amidst a pandemic which is challenging our economic, social, mental and physical well-being. The whole world is struggling to live in the face of a real living threat, and each one of us is uncomfortable about the current situation in our own way. Even though we are facing a common problem, everyone's suffering is unique. The manner in which this problem affects everyone is different. And here we are today with this webinar, trying to make a very small contribution by helping people to tide over this crisis. Today, we'll try to explore the techniques of Vastu, astrology, and emotional balancing techniques to deal with our stress. RV Learning Foundation works with women. Can I request participants to please mute themselves? RV Learning Foundation works with women, underprivileged children, and with young graduates and undergraduates. And we impart training and education to develop skills so as to make people financially independent. Today, we wish to support people in this tough time, and that's the reason we've been running a series of webinars in the last 6 weeks. I'm very privileged and honored today to have with us our panelist, Chaya Goyal, who is a Vastu Acharya, and she's also the founder of Vastu Devaya Namaha. And we also have with us Meenakshi Handa. Meenakshi, are you there? I think we've dropped her. I think, yeah. Right. Okay. We have Meenakshi Handa, who is the director, RV Learning Foundation, and she's also an astro consultant. Before I hand over the floor to them, I would like to share a small presentation about RV Learning Foundation and the kind of work that we do. So here we go. We are a not-for-profit company registered under the Section 8 of Companies Act. We work in the areas of employability skills, women entrepreneurship, and education for underprivileged children. Our women entrepreneurship workshops are focused on skill development for women so that they can be financially independent.
I welcome Meenakshi Handa and Chaya Goel, and I would like to now hand over the floor to you. Chaya, would you please start? Chaya, I think you are muted. या रोहिणी, एक्चुअली मैंने अपने आप को मैं म्यूट भी नहीं कर सकती आई थिंक, और अनम्यूट भी आप ही को करना होगा. सो इन केस आई एम म्यूटेड तो यू हैव टू डू दिस. ऑलराइट. सो काफी लोग हैं इस समय जिन्होंने भी मेरे 2 दिन पहले भी ये वेबिनार में काफी सारे डिस्कशन थे. आज कुछ डिफरेंट देने की कोशिश करूंगी मैं इनको. सो आज हमारा टॉपिक भी स्लाइटली डिफरेंट ही है कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, स्पेशली द इमोशनल स्ट्रेस दैट इज कमिंग राइजिंग आउट ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस एंड द लॉकडाउन एंड स्टेइंग टू मच एट होम एंड यू नो डूइंग नथिंग काइंड ऑफ वो फीलिंग एक जो आ रही है. काफी सारी इनसिक्योरिटीज आ रही हैं. रीजंस चाहे जो भी हो, ऑल इन ऑल रीजंस चाहे जो भी हो, पर स्ट्रेस फील हो रहा है, ये एक फैक्ट है. अब हमें इसे हैंडल करने के लिए जो मेरे पास हैंडी टूल्स हैं, और इन हैंडी टूल्स के सपोर्ट में मैं एक चीज अभी आपको शेयर करूंगी कि आज भी 2 जगह मैंने अपने ये टूल्स शेयर किए हुए थे जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे. ये उसकी वजह से वो फैमिलीज जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे वहां तो फॉर श्योर प्रिकॉशन भी चाहिए थी बाकी लोगों के लिए, और हीलिंग भी चाहिए थी, रिकवरी भी चाहिए थी. सो वहाँ उस फैमिली से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और जो नेबर्स थे जो बाई चांस इस टाइम पे उनके संपर्क में आए थे एंड दे वर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस. तो ये जो टेक्निक्स है, नॉट दैट कि ये जनरल स्ट्रेस को हैंडल कर रही है, ये किसी भी तरह का जो भी स्ट्रेस है उस सभी पे काम कर रही है. And this I am sharing because I am 200% confident these things are working, and repeatedly I am getting the feedbacks. तो अब हमें स्ट्रेस हो रहा है, रीजन कोई भी है. अब हम रीजन पे या बैकग्राउंड पे हम नहीं जाते हैं. लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमें उसे मैनेज कैसे करना है. सो दोज हु आर फीलिंग स्ट्रेस, पहले तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें फोकस करना है कि स्ट्रेस किस चीज का है, यानी उस स्ट्रेस की वजह से हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है. वो थॉट प्रोसेस कैन बी ओवर थिंकिंग, नंबर 1. इट कैन बी सम विड्रॉल सिम्टम्स. इट कैन बी डूइंग नथिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, फीलिंग लो, निकलना ही नहीं है बेड से, उठने का ही मन नहीं है. नो, डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स होता है हर एक पर्सन का. अब इस रिस्पॉन्स को हम लोगों ने स्टडी किया है वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में. तो ये देखा गया है कि जब भी बहुत ओवर स्ट्रेस हो रहा हो, इवन डिप्रेशन के लेवल पर, कंप्लीटली रनिंग अवे वाली सिचुएशन में भी अगर पर्सन है, तो वो अगर अपनी स्लीपिंग की पोजीशन चेंज करता है, यानी वो अगर ऑप्शन अवेलेबल है और नहीं भी अवेलेबल है तो भी वो अपना बेडरूम चेंज करे कुछ दिनों के लिए. सिर्फ 1 बेडरूम हाउस में भी मैं एडवाइस करती हूँ कि जाइए ड्राइंग रूम में कुछ दिन सो जाइए. बेडरूम पॉसिबल है, दूसरा अवेलेबल है, तो अपना बेडरूम चेंज करिए. कितनी सिंपल सी इजी सी चीज है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार अपना बेडरूम चेंज कर देना है. क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, यहाँ पर मैं इसके पीछे थोड़ा सा सपोर्टिंग आपको देना चाहूंगी कि अगर ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में बेडरूम होता है तो ऐसे केसेस में बेडरूम है या किसी भी वजह से वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. मे बी किचन है तो हाउस वाइफ अक्सर वहीं पर कुकिंग कर रही हैं, पूरा पूरा दिन ईस्ट और साउथ ईस्ट में निकल रहा है, ईस्ट में और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा में. तो वहाँ ओवर थिंकिंग का इश्यू आ जाता है. कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल देता है तो इसके मीनिंग कुछ भी नहीं है और हम 10 मीनिंग निकालेंगे. ओवर थिंकिंग में, ओवर इंटेलिजेंस में आ जाएंगे, डिस्कशंस में आ जाएंगे. तो ये एक सिचुएशन हुई. तो अब हमें क्या करना है, उस डायरेक्शन में थोड़ा टाइम कम स्पेंड करके देखेंगे तो हमें इमीडिएट 3 to 4 डेज में डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है. कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. विड्रॉल आ रहा है. इवन एक छोटा सा फनी सा एग्जांपल है कि अगर रामायण अभी बहुत चल रही थी, सभी लोग देख रहे थे कि रामायण में जो है वो कोप भवन, केकई कोप भवन में चली गई थी और इमीडिएटली दशरथ जी भागे कि भाई रानी तो जो है वहां पर कोप भवन में चली गई. बिकॉज उस समय भी ये सारी चीजें डायरेक्शंस के हिसाब से डिसाइड की जाती थी, प्लेस की जाती थी. अगर वो कोप भवन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी. तो इमीडिएटली चेंज ऑफ प्लेस जो है वो रिकमेंडेड है. पहली चीज ये वास्तु का है.
इसके अलावा घर में कोई इस तरह की कोई हमारे पेंटिंग्स तो नहीं लगी हुई है जो कि सैडनेस हमें इंडिकेट कर रही है। तो एक एक पेंटिंग, हर एक रंग, हर वस्तु हमसे कुछ ना कुछ कहती है। हर एक वस्तु की, पेंटिंग की, शो पीसेस, आर्टिफैक्ट्स, उनकी एक ऊर्जा होती है, उनका एक मैसेज होता है। तो हमें एक ना अवेयरनेस में आना है, चीजों की तरफ देखना है। पहले तो अपने थॉट्स को समझना है कि जब हम टेंशन में हैं तो हमारी बॉडी या हमारा माइंड किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उससे रिलेटेड कोई सामान हमारे आसपास है तो उसको भी कुछ दिनों के लिए कंसील कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सो ये तो सिंपल वास्तु टिप्स हो सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली हर डायरेक्शन में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्लटर तो नहीं है, ऐसा कोई सामान जो हमारा यूज नहीं हो रहा पिछले 3 महीने 6 महीने से, क्योंकि क्लटर इन योर स्पेस will lead to clutter in the thoughts. आसपास जो भी जिस भी तरह का सामान होगा वैसे ही हमारे विचार होते जाएंगे। और जब क्लटर इन थॉट्स का मीनिंग है कि हम ऐसी चीजें सोच रहे हैं, इररिलेवेंट चीजें हम सोचने लग जाएंगे। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑर्गेनाइज्ड, अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे तो हमारा मन, मस्तिष्क, हमारे विचार भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। जो बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन में है, 2 शब्द होते हैं, इवन वर्ड्स, अभी मैं कलर्स की बात कर रही हूँ, एक्टिविटीज की मैं बात कर रही हूँ, गैजेट्स घर में हैं, तो कुछ शब्द जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने बच्चों से कहते हैं ना वेरी गुड, वो उस चीज को बार बार करना चाहते हैं। बच्चे ने पानी का गिलास ला के दिया, वी सेड वेरी गुड, तो वो बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है। सेम वो मोटिवेशन हमें कुछ शब्दों से हमें भी मिलता है। तो वो वर्ड्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। वो वर्ड्स हमारी अपनी भाषा के हो सकते हैं, किसी और भाषा के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस के लिए किसी भी तरह का कोई लिमिट नहीं होता। हमारे सबकॉन्शियस में हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और सबकॉन्शियस हर चीज से एक मैसेज लेता है और उसी तरह से वो हमारा कॉन्शियस को कहीं ना कहीं ड्राइव करने लग जाता है। सो कुछ शब्द हमें वो भी अपने सामने लिख के रखने हैं जिससे कि हमें वो पॉजिटिविटी, वो मोटिवेशन मिलता है। वो हर व्यक्ति के हो सकते हैं पर कुछ यूनिवर्सल भी है। जैसे डिवाइन ऑर्डर एक कॉम्बिनेशन है। डिवाइन मीन्स, डिवाइन यानी जिस भी हम भगवान को, जिस भी ऊर्जा को हम मानते हैं, ऑर्डर मतलब हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाए। तो जो डिवाइन ऑर्डर वर्ड, जब भी हम बहुत ओवरवेल्म्ड है, सॉर्टेड नहीं है, हमारे थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अगर हम डिवाइन ऑर्डर शब्द को रिपीट करने लग जाते हैं, इन 2 शब्दों को, तो अक्सर यानी कि यूनिवर्सल वर्ड्स हैं तो 99% काम करते हैं, 99.99% काम करते हैं कि चीजें सॉर्ट होने लग जाती हैं, अपने आप ही चीजों के सुलझने के रास्ते बनने लग जाते हैं। सो दिस इज अबाउट वास्तु। इसके अलावा कुछ इमोशनल टेक्निक्स हैं, पर उसके पहले मैं आई वुड रिक्वेस्ट मीनाक्षी जी कि वो अपने कुछ टिप्स हमें दें। उसके बाद मैं फिर दूसरी टेक्निक्स पे और दूसरी चीजों पे भी बात करना चाहूँगी। Thank you, Chaya. Basically, you picked up a very right thing, that overthinking, that is the major cause of our worries. And why do we do overthinking? Overthinking is done only when our moon is not in balanced position. So I will just focus my, discussion today on telling that how we can control our moon so that our thoughts are organized. We can see how we can streamline our thoughts and center our mind. So in the Vedic astrology, basically it is planet moon which represents our mind. So to control our mind, we need to control our moon and see how we can do certain things so that our moon is in a better position. Because when if we go back to little theory part of moon, we'll tell you that moon basically rides a chariot which is of 10 horses. Okay, and the 10 horses are, out of these 10 horses, 5 horses are our 5 senses, which is called Gyanendris, and 5 are the Karmendris. So when these 10 forces, they are not streamlined, they run in a different direction. We, our thoughts, they will run amok. They will not be in a order form. So in order to make these forces in control, okay, we need to
centralize our mind. And how do we center our mind is that we can, practice various techniques like meditation, recitation of mantras, or listening and recitation of bhajans, etc., or doing some nam jap. It is not necessary that anybody, if you're not even given certain, you've not learned how to do meditation, you can just sit back, relax, concentrate on your breathing, and just think about it. Just sit back, concentrate on your breathing, or just recite any name which is which is close to your heart. Like you can just do Om, or you can do just Vaheguru, or any bhajna or certain mantra like Gayatri mantra. You can do that. Apart from that, I'll give you a very, very normal tip which you should do it in these days, because these days we are running into a lot of useless thoughts. So what all you can do is, you can keep a water in a utensil near the bed at night before going to bed, and then when you get up in the morning, pour this water on any thorny plant outside your house. If possible, do it on kikar plant. That will remove this water will gather all the negative thoughts which are running around at night, and it will absorb all those negative energies, and this will just go away from you. This is a normal procedures which you can do. This is one step we can do. And second one is, which is for a long-term basis. It's not only for corona period, it's for a long-term basis. In case you do not want your moon to be spoiled, never waste water, milk, or rice. These are things which strongly represent moon, and whenever we waste these things, we are spoiling our moon, and in turn we are creating a bad thing for our mind. So this is some of the remedies which I think anybody, this is a generic remedies which anybody can try. Now you can take over again, Shaya. For the moment, it's that I would like to tell them. Shaya, are you there? Shaya, are you there? I hope we didn't drop her. Okay, in the meanwhile, I'll tell them some of the things in case Shaya is not there. What I feel is, whatever remedies we do in a journal, whenever any astrologer tells you for a remedy, whatever you do, these all remedies are basically a short-term measure. They are the cheat codes basically to help you temporarily, so that it can affect your subconscious and you for a temporary period, and you change your behavior so that the permanent changes comes in your life. So in order to make betterment of your life, it is better that we improve our planets permanently by making a behavioral changes in ourselves. And instead of doing short-term remedies, I would tell you some remedies which you can do it lifelong and improve upon our moon planet, and basically get over depressions, any negativity feelings. These are the remedies which you should do it on a long-term basis. Like you should serve mother and mother-like figures. Never disrespect your mother or mother-like figures, or the women officials, government officials. Always respect them. And second one is, speak in a very sweet voice as much as possible. Try to improve upon your voice to make it as sweet as possible. And in case you get any opportunity to give a comfort or a counsel to anybody, always take that opportunity. Whenever you counsel somebody, you comfort somebody, you always improve your mood, and this will help you in a long way in improving your
mental health. Shaya, you could take over That's now. all. Yeah, thank you, Meenakshi, for your valuable inputs. I would like to take it further. You were saying something, Rohini? Sorry, I couldn't hear. No, I just want you to take over. That's it. Yeah. So we were like अभी मीनाक्षी ने इतना अमेजिंग चीजें बताई हमें कि हमें अपने मून का ध्यान रखना है और मून किस किस चीज से मैनेज किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है, उसके बारे में बहुत वैल्यूबल टिप्स उन्होंने दिए। और ये हमारे वैदिक संस्कृति की, हमारी सनातन धर्म की एक्चुअली जो परंपरा है ना कि पानी वेस्ट नहीं करें, ये हर चीज मीनिंगफुल है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई विज्ञान है और ये कहीं ना कहीं हमें पर्सनल लेवल पे ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो अब जब ये इम्पैक्ट कर रही है तो हम इनको कुछ यूटिलाइज करें कि हमारे बेनिफिट में काम करें, बजाय इसके कि हमारे लिए चीजें खराब हो। सो अब आगे और हम कैसे अपने मतलब कुछ इमोशनल टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं, बहुत सिंपल टूल्स हैं। उन टूल्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने स्ट्रेस को और ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं। पहली बात, स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है। स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स है, सबसे पहली बात हमें पहचानना है कि स्ट्रेस है या नहीं। अब हमें लग रहा है यस वी आर स्ट्रेस्ड, ओके, रिकॉग्नाइज हमने कर लिया कि यस समवन इज स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड फॉर एग्जांपल। तो ये आ रहा है। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस ही कई बार तैयार नहीं होता, हमारे उसके अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ आ जाते हैं जो बचपन से हम सुन रहे होते हैं। वी आर नॉट गुड इनफ। किस चीज का स्ट्रेस है? आई एम नॉट गुड, आई एम जजिंग माई सेल्फ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, सामने वाला मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा, किसी भी तरह का। या मैं अब फाइनेंस की बात करूँ, इस सिचुएशन में फाइनेंस का स्ट्रेस हो सकता है, आई एम नॉट कैपेबल इनफ ऑफ अर्निंग और सस्टेनिंग। तो ये सब हमारे लिमिटिंग बिलीफ की वजह से ये हमें चीजें हॉन्ट कर रही हैं और अब हमारा माइंड जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। तो अब हमने ये तो पहचान लिया कि हम स्ट्रेस्ड हैं। अब हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है, हमें उस पर काम करना है। अब हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी स्ट्रेस का रिस्पॉन्स किस फॉर्म में दे रही है। इट कैन बी समटाइम्स ओवरवेलमिंग, ओवर एक्साइटमेंट में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा काम करने लगेंगे। दैट समटाइम्स दैट कैन बी चैनलाइज्ड, उसे हम बहुत आराम से पॉजिटिविटी के लिए चैनलाइज कर सकते हैं। वो स्ट्रेस उतना अक्सर देखा गया जो जिस स्ट्रेस का रिस्पॉन्स एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट में आता है, वो मैनेजेबल होता है। पर जब वो अंडर एक्साइटमेंट में चला जाए, रिएक्शंस हमारी स्लो हो जाए, परेशानियां बढ़ने लगे, डिसीजन मेकिंग पावर पे इफेक्ट आने लगे, उसे उस अंडर एक्साइटेड स्ट्रेस का वो जो रिस्पॉन्स है अंडर एक्साइटमेंट वाला हमारी बॉडी का या हमारे माइंड का, उसको मैनेज करना, उसको एड्रेस करना इमीडिएटली बहुत जरूरी होता है। जो मैं पहले बता रही थी वास्तु की कुछ दिशाएं, कि हम कुछ दिशाओं की वजह से ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं या विड्रॉल में चले जाते हैं, स्पेस आउट कर लेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे, अपने आप अपनी एक्टिविटीज को मिनिमाइज करते चले जाएंगे, उन एक्टिविटीज से हट जाएंगे जो हमें खुशी भी देती हैं, हमें कहीं स्टिमुलेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, हम उन चीजों को भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। सो पहली चीज तो हमने वास्तु में बैलेंसिंग की। अब उसके बाद जो इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, जहां पर विड्रॉल आ रहा है, जहां पर प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। आज जिस जो सिचुएशन में हम लोग बैठे हैं उसमें हम अपनी प्रोडक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वी हैव टू इम्प्रोवाइज, वी शुड इम्प्रोवाइज, ये हम सुनते जा रहे हैं, पर अब करना कैसे है? उसके लिए एक अगर हम अंडर एक्साइटमेंट का एक एग्जांपल लेना ताकि लोग और बेटर कनेक्ट कर पाए, तो हम जब भी मैनेज करने की सोचते हैं तो सबकॉन्शियस का एक निगेशन आता है। सबकॉन्शियस क्या कहेगा? अगर मैं ये करूंगा, यानी कहीं हमें कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ना है, तो स्पेशली हाउसवाइफ्स को वो बहुत दिक्कत होती है, या बिजनेस में पार्टनर की वजह से मेल को भी दिक्कत हो जाती है, जॉब में है तो बॉस का फियर आ जाता है, आई मे लूज अप, आई मे एंड अप अलोन, अकेला रह जाऊंगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मैंने इतने दिनों से ये किया ही नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब कहीं ना कहीं विड्रॉल के और स्ट्रेस के जो सिम्टम्स आ रहे हैं। बिलीव ही नहीं है कि हम आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली, उसकी नीड्स को मैं पूरा कर पाऊंगा। बहुत सारे इस तरह के इश्यूज ऑल ऑफ अ सडन सोसाइटीज में लोगों के अंदर आने लग गए हैं। जॉब छूट गई है तो प्रॉब्लम है ही, नहीं छूटी है तो भी, बिजनेस चल रहा है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है तो भी प्रॉब्लम है, करें क्या? हर किसी का जब रिस्पॉन्स अलग है तो हर किसी का ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली अलग होगा।
तो कुछ चीजों में मैं आपको एम्पावर कर सकती हूँ, कुछ यूनिवर्सल चीजें दूंगी जो कि 200% काम करेंगी, पर कुछ हमें अपने आप भी आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या चीज हमारे लिए कनेक्टिंग है। कोई विजुअल, कुछ हम विजुअल का मतलब जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, ड्रीम कर रहे होते हैं, हम कोई म्यूजिक सुनते हैं उससे अच्छा लगता है, कोई चीज की टच इट कैन बी सिंपल कि आप अपने आप को ही हग कर लें, कोई सेंसरी भी हो सकता है स्टिमुलेशन की, कोई पुरानी अच्छी मेमोरी, कोई पुराना अच्छा टाइम, कोई पुराना ऐसा व्यक्ति जिससे हमें मोटिवेशन मिलता हो, करंटली हमने कोई मूवी देखी हो उसके किसी कैरेक्टर से हम कनेक्ट करके अपने आप को मोटिवेशन दे सकें। तो इसमें से कोई भी एक चीज हम उठा लेंगे और उसके बाद ये जो हमारा हाथ है उसमें हाथ में हमारा थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में ये यूनियन वैली कहते हैं इसको, यूनियन वैली। तो यहाँ पर हम प्रेशर देंगे, ये हमारी जो एनर्जी स्लो हो गई है, जिसका एनर्जी का मूवमेंट खत्म हो गया है बॉडी के अंदर से, कम हो गया है, कम होने लगा है या बिल्कुल ही डेड भी हो गया है, तो वी कीप प्रेसिंग इट जब भी याद आए। और इसके साथ स्टिमुलेशन क्या है हमारा, ऐसी कोई भी चीज जो हमें एक अच्छी फीलिंग देती है, अगर वो हम इसके साथ करते हैं। तो मैं अब जो 200 कह रही हूँ, हालांकि मैथमेटिकली 200 कुछ होता नहीं है, वो 500 हो जाएगा। सो दिस पॉइंट आई बिलीव कि सबको वीडियो दिख रहा है और पॉइंट भी समझ रहे हैं। कोई सा भी हाथ ले लें आपका, डोमिनेटिंग हैंड यूजुअली हम प्रेस करने के लिए यूज करेंगे और दूसरे हाथ पर, और फिर उसके बाद हम दूसरे हाथ पे भी। सो दिस इज बैठे बैठे कभी भी। और ब्यूटी क्या है इस वाले पॉइंट की कि आप पब्लिक प्लेस में हैं, आप अकेले हैं, कहीं पर भी हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा। तो दिस इज कॉल्ड यूनियन वैली टैपिंग। अगर हम इसको किसी सेंसरी के साथ ये टैपिंग करते हैं तो वी गेट इवन बेटर रिजल्ट्स एंड फास्टर रिजल्ट्स। पॉइंट नंबर 2, हम सिर्फ यहाँ पर हम जेनरिक बात कर सकते हैं, सबके अपने स्पेसिफिक स्टिमुलेंट्स होंगे जो आपको खुद ढूंढने हैं कि आप किस चीज से, कोई किसी फ्रेग्रेंस से एसोसिएट कर सकता है तो उस फ्रेग्रेंस को अपने आसपास उस समय कर लीजिएगा जब ये एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप कर रहे हैं। सो ये क्या, अब नेक्स्ट हमारा, पहला तो हमारा ये यूनियन वैली हो गया। सेकेंड, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, और इसके साथ हमारा सेंसरी जो भी है हमें याद आ गया, बहुत अच्छा है। जो लोग अभी इस स्टेज में है कि वो अपने सेंसरी को भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उन्हें सिर्फ ग्रीन कलर की एनर्जी विजुलाइज करनी है कि वो सांस के साथ एक ग्रीन कलर की एनर्जी इनहेल कर रहे हैं और नॉर्मल अपनी नेगेटिविटी एक्सहेल कर रहे हैं, उसके बाद फिर से इनहेल कर रहे हैं वो ग्रीन कलर की एनर्जी। अब ग्रीन कलर ही क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्रा का कलर है, और जब भी हम किसी भी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा हार्ट चक्रा वीक होना शुरू हो जाता है और उसको, उसका जो फूड है वो ग्रीन कलर है। तो ये सब विजुअलाइज कर लें, ऐसा नहीं है कि अपने घर को हमने ग्रीन से पेंट करना है, नथिंग लाइक दैट। सिंपल सा विजुअलाइजेशन इज गोइंग टू वर्क वंडर्स। हार्ट चक्रा पे हमने क्यों ध्यान दिया, इट गिव्स एम्पैथी, कंपैशन। हमारी जो एबिलिटी है ना किसी को भी एक्सेप्ट करने की सिचुएशन को, लेट गो कर देने के लिए भी हमें हार्ट चक्रा मजबूत चाहिए, फॉरगिव करने के लिए भी हमें चाहिए, कोई चेंजेस के हमें पास करना है, कोई भी किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आ रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही टाइम चल रहा है। सो हार्ट चक्रा अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे लिए ये सारी जर्नी, ये ट्रांजिट बहुत ईजी हो जाता है, पीसफुल फील होगा। करके देखिएगा और मेक इट अ हैबिट। अगर हम टाइम भी फिक्स ना कर पाए, लेकिन जब भी हमें वो स्ट्रेस का सिंड्रोम आ रहा है, जब भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम किसी स्ट्रेस में है या किसी चीज का तनाव हो रहा है, तो सिंपल इनहेल करेंगे ग्रीन एनर्जी को और एक्सहेल कर देंगे। कोशिश करेंगे कि हम कहीं पर एक अच्छी ऐसी जगह, नॉर्थ ईस्ट वैसे मैं सबको बोलती हूँ कि हमारा जो घर का जो ईशान कोण है जहां से सूरज उगता है उस दिशा में हम बैठे, इधर भी फेसिंग हो, इतना कोई वहम नहीं करना कि ये फेसिंग या वो फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट में बैठे, वहां पर हम ये ग्रीन कलर की एनर्जी को एक्सहेल करें और अपने आप से आप देखेंगे, इनहेल करें ग्रीन कलर की एनर्जी को इनहेल करें और हम देखेंगे कि कोई भी नेगेटिविटी अपने आप एक्सहेल होते चली जाती है। रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली करते रहिए टिल द टाइम यू फील बेटर। रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है तो ऐसा कहा जाता है कि आप रिस्पॉन्स देने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले एक बार गहरी सांस लें। अब ये गहरी सांस हमने हार्ट चक्रा के ग्रीन कलर्स के साथ ली विजुअलाइज करते हुए।
एंड यू सी द डिफरेंस कि आपका जो पहले रिस्पॉन्स होता था और इस वाले एक्सरसाइज, इस वाली टेक्निक के बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। अनदर बहुत ही छोटा सा नंबर है, बहुत ही छोटा सा नंबर है जो हम 363, इसको हम टैपिंग के लिए यूज करते हैं। हमारे हार्ट के सेंटर में, हमारे चेस्ट के सेंटर में टैपिंग करें और टैपिंग करते समय हम अपने माइंड में नंबर रखें 363। इमीडिएट स्ट्रेस हमारा रिलीज हो जाएगा। आप वो जो ब्लिस का सेंसेशन है ना, 3 या 4 बार करने के बाद जो हैप्पीनेस का सेंसेशन है वो गारंटेड फील कर पाते हैं। टैपिंग करना है चेस्ट के सेंटर में और 363, वो 363 माइंड में रखेंगे, माइंड में रिपीट करेंगे। नहीं लग रहा तो अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लेंगे और चेस्ट के सेंटर में हम सिंपल टैपिंग करते जाएंगे। चेस्ट हार्ट चक्रा का ये वाला जो पॉइंट है चेस्ट के सेंटर में, ये हमारा एनर्जी का सोर्स पॉइंट है, एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पर किसी भी तरह की पॉजिटिविटी, जो लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही, पर किसी भी, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी to stay positive, to keep yourself awakened, to keep your responses proper. ट्रांजिशन में बहुत हेल्प करता है ये वाला सोर्स एनर्जी का टैपिंग 363। और भी बहुत सारे हमारे टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आज हम हमारे पास लिमिटेशन भी रहेगी। आई एम श्योर टाइम का भी लिमिटेशन रहेगा। I'm not sure Rohini, how much time we have. Kindly let me know ताकि मैं कोई और टिप्स मुझे इंक्लूड करने हैं तो मैं देखूं उसके हिसाब से। Maybe after 5 minutes we can invite the audience for questions. Okay, okay. So ये टैपिंग के बाद you will yourself feel हार्ट चक्रा का पॉइंट क्या है, मैं रिपीट कर रही हूँ, चेस्ट का सेंटर पॉइंट, इस पे टैपिंग करना। और टैपिंग भी नहीं करना है तो सिंपल अपना थंब, ये थंब है, ये हम यहाँ पे सिंपल रख लेंगे। So this is, and then number is 363. So you will yourself feel that you are a changed person after few session. किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, किसी डॉक्टर पे नहीं जाना, किसी हीलर की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए अपने आप काम कर सकते हैं। So यूनियन वैली, हार्ट चक्रा, नंबर 363 एंड ग्रीन कलर की एनर्जी। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस हमें जब मैनेज करना है तो ये हमारे लिए हैंडी टूल्स हैं, किसी पे भी हमारी कोई निर्भरता नहीं है और हम आराम से अपने आप को। अब ये सारे हमने टेक्निक्स कर लिए, और अगर हम यहाँ पर बात करें जो अक्सर लोगों का एक जनरल रहता है प्रॉब्लम, जब भी वो एंजाइटी है तो किसी ना किसी दूसरे पर्सन को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। कैन बी योर कलीग एट द वर्क प्लेस, कैन बी योर बॉस, कैन बी योर बिजनेस पार्टनर, कैन बी योर एम्प्लॉय, कैन बी योर स्पाउस, एनी अदर फैमिली मेंबर। पर क्या ऐसा है, ये जो जजमेंट है क्या ये सही है? अब हम सही और गलत में जाएंगे तो लंबा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। एक और इसको कट शॉर्ट कर देते हैं कि जो भी पर्सन हमें परेशान, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रेस आइडेंटिफाई किया, स्ट्रेस का हमारा रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई किया। अब स्ट्रेस किस वजह से है, जब हमने वो आइडेंटिफाई किया तो अगर वहां पर पर्सन आया, जो कि 95% केसेस में पर्सन स्पेसिफिक लगता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, बाकी चीजें मैनेजेबल होती है। पर्सन स्पेसिफिक जो स्ट्रेस होता है ना वो मैनेजेबल लगता ही नहीं है किसी को। उस केस में क्या करना है कि उस पर्सन की कोई भी एक पॉजिटिव एनर्जी पकड़ ली हमने, सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सब में अच्छा होता ही होगा। We just have to force ourselves to fetch that positive energy of the other person and then simply hold on to it, simply hold on to it. एंड यू विल फील नंबर हमारे चल रहे हैं, वो हमें सबके लिए इस एनर्जी को, सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड करने के लिए जो हमारी बाकी टेक्निक्स हमने अब तक डिस्कस की वो हमें सपोर्ट कर रही है। सो हम ये देखेंगे कि जब फिर हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी सामने वाले पर्सन तक पहुंचेगी और चीजें अपने आप बेटर होने शुरू हो जाएंगी, नेचुरल वे में बेटर होने शुरू हो जाएंगी। सो आई बिलीव इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लाइक टू आंसर। Okay, I'm unmuting all the participants now, and I would throw the floor open for all the people to ask questions to Chaya and Meenakshi. यहाँ पर kindly mute everyone once again and then unmute me, Rohini. Yeah, sure. Yeah.
एक हम प्रोटोकॉल थोड़ा सा यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं, बिकॉज ये सभी लोगों को एक साथ अनम्यूट करने से डिस्टरबेंस होता है। सो यहाँ पर ना आपके पास एक चैट एक होगा नीचे मोर में, जहाँ 3 डॉट्स हैं, वहां पर एक हैंड्स अप करने का ऑप्शन होता है। तो जिसको कुछ पूछना है वो अपना हैंड्स अप कर दे, या फिर यहाँ चैट में अपना क्वेश्चन डाल दे, मैं यहीं से रिप्लाई कर देती हूँ। उधर भी लगा के आ गए हो क्या? रखिए कर लें, अपने लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट आर्म पे लिख लें, या हम अपने थ्रॉट पे ही फिंगर से लिख लें वर्चुअली। सो 24 आवर्स में सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी प्रोटोकॉल्स हैं वो तो सब लोग यूज कर ही रहे हैं, सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस और हेल्दी डाइट, वो सब तो किया ही जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज देयर, एंड एनीथिंग एल्स, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में ही लिखें। So this is another question, पर ये बहुत स्पेसिफिक है, जेनरिक नहीं है, मैं इसे जेनरिक लेने की कोशिश करती हूँ। How to address the challenges that are actually arising between the spouses? तो जो हम अभी बात कर रहे थे, पर्सन स्पेसिफिक आ गया। पर्सन स्पेसिफिक है तो स्पाउस के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होती हैं, उनमें से किसी भी पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ के आपको, यू जस्ट हैव टू होल्ड ऑन, इनहेल दैट पॉजिटिव मेमोरी एंड एक्सहेल ऑल द नेगेटिविटी एसोसिएटेड। सो ये किया जा सकता है। हर्षिता जी का वीडियो ऑन करना है। हर्षिता इज सेइंग प्लीज स्टार्ट वीडियो ऑन। या हमारी हर्षिता, ओके। So yeah, Rohini, over to you. Yeah, so any other questions, audience? Are there any other questions? I've unmuted you all. Do you have any questions? I think I need to... Yes, I would like to ask a question. Yes, Nidhi. Sure. How in this situation do you deal with teenagers? You know, I think I'm facing this problem where I feel she's not contributing enough with the work in the house, and everybody else's challenge. You know, we are all facing a lot of comparatively much more work than what we are used to now that we don't have any house helps coming in. I would like to request Meenakshi first to answer this, and I will come over. Meenakshi, are you there? Okay. Yeah. I think you need to work on that generic remedy which I gave you to keep that water in next to her bed. जब में ऐसा है कि बुजुर्ग लोग आके इस एज में भजन सुनने लगते हैं तो वो उस दिशा में बैठ के सुनने लगते हैं। और एक मैंने जो डिवाइन ऑर्डर है वो भी जेनरिक है। वो डिवाइन ऑर्डर आप लिख के ना किसी पेपर पे और एक सर्कल पे के अंदर डिवाइन ऑर्डर लिख दें तो सब लोग अपने आप ही ऑर्डर में आ जाएंगे, क्योंकि हमने डिवाइन से रिक्वेस्ट किया है कि कीप एवरीथिंग इन द ऑर्डर। सो ये इट वर्क्स विद, या दिस इज यूनिवर्सल फ्रेज। आई विल ट्राई, थैंक यू सो मच। बॉडी का आयुर्वेदा के हिसाब से भी, क्योंकि कंपोजिशन सबका अलग अलग है तो रूटीन सबका अलग अलग हो सकता है, तो उस चीज में ना पढ़ के, पर हाँ हमारा प्रोडक्टिव रहे, वो 24 घंटे प्रोडक्टिव हो जाए। सो एक येलो पेपर पे हम सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे डिवाइन ऑर्डर, और बच्चों को ही कह देंगे कि आप अपना एक आपकी चॉइस का एक रूटीन इस पे लिख लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। जब बच्चा उसको बना लेगा तो आपके घर का जो भी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा है, कहीं मैं आपको बहुत ब्रॉड डायरेक्शन इसलिए देने की कोशिश करती हूँ कि
गलती भी हो तो भी वो विद इन द रेंज ही हो, अगर गलत दिशा में भी लगा। सो वेस्ट और साउथ वेस्ट यानी कि 270 डिग्री से थोड़ा सा टुवर्ड्स साउथ वेस्ट की तरफ हम आ गए और वहां पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। मतलब इट शुड बी विजिबल। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो विजुअल में होना चाहिए, बच्चों को दिखे। वॉल एक्सट्रीम होनी जरूरी नहीं है, इट शुड बी ऑन सच अ पोजीशन कि वो बच्चों को दिख रहा है और आते जाते वो इवन इफ दे आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इट, स्टिल इट इज वर्किंग ऑन देयर सबकॉन्शियस माइंड। एंड ग्रेजुअली देखा गया है कि उस दिशा में जो बच्चों का स्किल डेवलप करना है, यानी कोई एक स्किल जो वो नेचुरली लेके पैदा हुए हैं उसको और रिफाइन करना है, उससे संबंधित कोई भी चीज रख दी जाए, बुक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनी गैजेट्स, और ये वाला एक उनका टाइम टेबल लगा दिया जाए, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। बट यस, इट इज अ स्लो प्रोसेस बिकॉज ये काम कर रहा है सबकॉन्शियस पे। यू नो, इट इज नॉट कि वी आर गिविंग अ कमांड कि बेटा ग्लास पानी ले और उसने ले आया, सो इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें। पर इट इज डेफिनेटली वर्किंग। डिवाइन ऑर्डर लिखा येलो पेपर के ऊपर, टाइम टेबल बना दिया नीचे जो बच्चे ने खुद बनाया अपनी चॉइस का, एंड देन यू विल सी ग्रेजुअली कि बच्चा नोइंगली अननोइंगली सबकॉन्शियसली उसको फॉलो कर दिया, सो इट बिकम्स इजी टू मैनेज। और डेफिनेटली अब जो बच्चों का मेंटल एज है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे है, सो दे नीड देयर ओन स्पेस, सो वी आर नोबडी एज इट इज आल्सो, वी आर नोबडी टू गिव देम एनी कमांड्स। तो जैसे ही हम ये भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो वो जो उनके इनडिसिप्लिन होने से, रूटीन में ना होने से जो हमारा स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है। नो, गिविंग स्पेस टू ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, Chaya. Do we have any more questions, audience? Okay, it looks so like Nidhi is asking, can you repeat the direction for keeping the yellow paper? Yeah, west and southwest के बीच में। okay, northeast के diagonally opposite। so I guess now we are here at the end of our session today. Heartiest thankfulness to Chaya and Meenakshi for being here today. Thank you। And thank you all the participants for being here. In case you have any further questions, you can mail us and we can send them to Chaya and Meenakshi both. Thank you very much for being here with us today. So with that, I would end this meeting today. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Rohini. Thank you, Meenakshi, and thank you everyone. Thank you. Thank Thank you, Chaya. Bye.